آپ جوان کے لاشے پر کیسے آتا ہے؟ حسین چلے کہتا ہے میں نے دیکھا حسین 9 مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے. السلام علیکم. تو بھائی علی مدد تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے. گائز آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 9 محرم ہے، زیارتیں نکلتی ہیں، باقاعدہ تعزیے وغیرہ نکالے جاتے ہیں اور اذانیں علی اکبر ہوتی ہیں. یہ وہ اذان تھی جو علی اکبر نے پہلی دفعہ دی تھی کربلا. امام حسین نے کہا تھا جناب علی اکبر کو کہ اذان دو، اور اذان دینے کے بعد جناب علی اکبر نے کہا انا للہ و الیہ راجعون. تو سمجھیں کہ جب یہ سب نے سنا نا تو جتنے بھی مظلوم تھے کربلا میں ان کی چیخیں نکل گئی. تو بتا نہیں سکتا کہ آپ کیا کیا ظلم ہوا ان کے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوا. کل 10واں محرم ہے، کل سمجھ لیں کہ میرے مولا کا آخری دن ہے. کل انہوں نے اپنا سارا کنبہ دینا، اور آج مجلس میں علی اکبر کے مصائب بیان کیے جائیں گے. زیادہ تر مجلس میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے کیونکہ کسی سے وہ سنے نہیں جاتے. سمجھ لیں کہ کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایک بوڑھے باپ کی اور ایک جوان بیٹے، کبھی بھی برا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. وہاں کربلا میں ایک بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. تو گائز چلتے ہیں ہم زیارت پر، بات بہت لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں. اس بلاگ میں آپ کو میں مجلس کی بھی ویڈیو ہوگی اور اذان کی بھی ویڈیو ہوگی. تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور آگے شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ یہ 2 مہینے ایسی پاک آپ کو ویڈیو ملتی رہے. مقادر امورہی تصدر الیکم وتہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. کائنات کے بارے میں اللہ کا ارادہ اے آل محمد پہلے تم پر نازل ہوتا ہے، پھر تمہارے دروازے سے احکامات بڑھتے ہیں. جھومے کائنات کے بارے میں ارادہ پہلے آل محمد تم پر نازل ہوتا ہے، پھر تمہارے دروازے سے احکامات بڑھتے ہیں. اللہ اولاد دینے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آل محمد پر نازل ہوتا ہے، پھر آل محمد کے دروازے سے اولاد ملتی ہے. اللہ رزق دینے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آل محمد پر نازل ہوتا ہے، پھر ان کے دروازے سے رزق ملتا ہے. اللہ حیات دینے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آل محمد پر نازل ہوتا ہے، پھر آل محمد کے دروازے سے حیات ملتی ہے. اللہ زندگی دینے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آل محمد پر نازل ہوتا ہے، پھر آل محمد کے در سے زندگی ملتی ہے. اور ہم جملہ سنیں، اللہ موت دینے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آل محمد پر نازل ہوتا ہے، پھر ملک الموت کو ان کے دروازے سے احکام ملتا ہے. اور جب موت 14 کے بغیر نہیں آتی تو 14 کو مانتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ حسین اکبر گھوڑے سے اتری، حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا بابا ابھی تو میں مل کر آیا ہوں. کہا بیٹا تو میرا درد نہ سمجھے گا، تیرا جوان بیٹا نہیں. بس اکبر اتنا کر، جب جانے لگنا نا، جا رہے ہو نا تو پلٹ کر مجھے دیکھتے رہنا. اکبر چلے، پلٹ کر حسین کو دیکھتے رہے. جب اکبر نظروں سے غائب ہو گئے، حسین نے سینہ پکڑا، خاک پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ سے خاک پر مار کر کہتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا. سکینہ کہتی ہے
मेरे बाप के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई। हमें लगता था बतूल का बेटा अब ना बचेगा। अकबर मैदान में आए, जंग की। जैसे वहशी ने जनाबे हमजा को मारा था ना नेजा घुमा के, इसी तरह एक जालिम ने नेजा घुमाया, अकबर के आकर सीने में लगा। जब नेजा सीने में लगा, उसने सोचा मेरा नेजा है, मैं अपना नेजा तो वापस ले लूं, कहीं कोई और ना छीन ले, कीमती नेजा है। वो आगे बढ़ा, उसने नेजे को दस्ते को पकड़ा, अब पकड़ कर खींचना चाहा। अकबर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, नेजा तो बाहर नहीं आया। नेजा का दस्ता टूटकर उसके हाथ में आ गया और नेजे का फल अकबर के सीने में उतर गया। अकबर जीन से जमीन पर आए, सर शहीद ने कहा मौला मेरी मदद को आओ। अकबर ने मदद के लिए नहीं बुलाया, अजीब अंदाज से आवाज दी, बाबा मेरा सलाम कबूल करो। बाबा मैदान में ना आना, यहाँ नेज़े बड़े हैं, भाले बड़े हैं। हुसैन चली। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं अपने घोड़े पर बुलंद होकर देखा, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पर कैसे आता है। हुसैन चले, कहता है मैंने देखा हुसैन 9 मर्तबा मुंह के बल जमीन पर गिरे। अभी अकबर का लाशा 10 कदम के फासले पर था, अब जो गिरे तो हुसैन से चला नहीं गया। जब चला नहीं गया ना, दोनों कोहनियों से हुसैन चलते हुए अकबर की लाश पर पहुंचे। बेटा जवान बेटा हो ना, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो जाए, बाप को नहीं बताएगा। वो जानता जितनी तकलीफ नहीं उतनी बाप ने महसूस करनी है। बाप पूछेगा भैया बेटा क्या बात है, दर्द है? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी नहीं बताएगा। हुसैन अकबर के लाशे पर आए, हुसैन ने अकबर को टटोलना शुरू किया। टटोलते टटोल अब अकबर ने दोनों हाथों से अपना जख्म छुपाया हुआ है। टटोलते टटोलते हाथों तक पहुंचे, कहा बेटा ये सीने पे हाथ क्यों रखा है? कहा कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा। कहा हुसैन हाथों को हटा। नहीं नहीं बाबा सब ठीक है। हुसैन ने कहा अकबर तुझे मेरे हक का वास्ता, हाथों को हटा। अब जो अकबर ने हाथों को हटाया, गहरा जख्म था सीने के नीचे। हुसैन ने कहा अकबर मैं पर्ची निकाल रहा हूँ। कहा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। हुसैन ने 3 उंगलियां सीने के अंदर डाली, फल को पकड़ा, बिस्मिल्लाही व बिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह कह के हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह इब्राहिम को बुला, मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधे, आकर मेरा सब्र देखे। उसने हुसैन ने पर्ची का फल खींचा, ऐसे ही पर्ची का फल खींचा। अकबर ने दोनों एड़ियां रगड़नी शुरू की। ओ बूढ़ा बाप देखता रहा, जवान बेटा मर गया। आजादारो हुसैन का जवान बेटा मर गया। हुसैन का जवान बेटा मर गया। हुसैन ने कमर के नीचे हाथ डालकर अकबर की लाश उठाई और लेकर चले। हुसैन को याद तो आया होगा ना, जब हुर के बेटा मैदान में शहीद हुआ और हुर बेटे की लाश पर गए। जो हुसैन आए देखा हुर पहले से है। हुर चाह रहे लाश को उठाए। हुसैन आगे बढ़े, दोनों हाथ हुर के सीने पे रखकर पीछे धकेला। कहा हुर तुझे शरीयत का हुक्म मालूम नहीं? बाप कभी बेटे का लाशा नहीं उठाता। हुसैन जब तूने अकबर का लाशा उठाया होगा, अपना ये जुमला याद तो आया होगा, ओ बूढ़ा बाप कभी जवान बेटे का लाशा। हुसैन ने लाशा उठाया। चारों जानिब जो जालिम है वो अपनी रकाबों पर उचक कर देख रहे हैं। हुसैन ने लाशा उठाया, चले, हाथ पैर कांपा, हुसैन मुंह के बल गिर गए। फिर लाशा उठाया, फिर लेकर चले, फिर हुसैन कांपे,
मुंह के बल गिर पड़े। जैसे ही हुसैन गिरते, यहाँ से कोई हंसता, वहाँ से कोई जुमला कसता, वहाँ से कोई ताना देता, बुलाओ ना अपने अब्बास को, क्या लाशा उठाया नहीं जा रहा, अब्बास से कहो ना आके लाशा उठाए। जब चारों जानिब से जालिमों ने बताने दिए, हुसैन ने अकबर का लाशा रखा, खैमे की तरफ देखा, छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। हुसैन ने कहा, बच्चों आओ, लाशा उठाने में मेरी मदद करो, जालिम मेरी गुर्बत का तमाशा बना रहे, जालिम मेरी गुर्बत का तमाशा। मैंने एक अजीब व गरीब रिवायत बहरुल ग़मा में पढ़ी, खुदा की कसम जिस दिन पढ़ी थी पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस क्रिए के लिए आपको सुना देता हूँ, जब याद करेंगे आप रोएंगे, कब्र तक रोते जाएंगे। जैसे हुसैन ने कहा ना, बच्चों आओ मेरी मदद करो, लाश उठानी है। बच्चों का तो आपको मालूम है सीधे नहीं चलते, इधर से होकर चलेंगे, टेढ़े होकर चलेंगे, कभी इधर से घूम कर चलेंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। हुसैन ने कहा, बच्चों आओ। बच्चे चले, कोई बच्चा इधर से चला, कोई इधर से चला। जो बच्चा जिस जालिम के हाथ लग जाता, हुसैन देखते रहते, वो बच्चे को ज़िबा करता। लाश लेकर हुसैन खैमे में आए, अकबर का लाशा बिछाया, बीवियों ने मातम करना शुरू किया। हुसैन ने देखा, कहा अकबर की माँ कहाँ चली गई, अकबर की माँ कहाँ है? कहा मौला वो सिजदा शुक्र कर रही है। कहा अकबर की माँ को लेकर आओ। ज़ैनब व उम्मे कुलसूम गई, एक तरफ से ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, एक तरफ से उम्मे कुलसूम ने सहारा दिया। अकबर की माँ आई, तशहुद में जिस तरह आप बैठते हैं लैला बैठ गई, पहले गौर से अकबर को देखा, फिर कहा मौला सारी जिंदगी ये ज़ैनब के पास रहा, आज मुझे मिला भी तो कैसे मिला। आज मुझे मिला भी तो ये कैसे मिला। फिर कहा मौला अगर आपकी बहनें नागवार महसूस ना करें तो ज़रा खैमे के बाहर चली जाए, मैंने अकबर से कुछ बातें करनी है। ज़ैनब उठी, उम्मे कुलसूम उठी, बीबियाँ बाहर चली गई। फिर कहा मौला मैं आपको बाहर जाने को तो नहीं कह सकती, मगर आप भी ज़रा मुंह मोड़ कर इधर खड़ी हो जाए, मुझे अकबर से कुछ बातें करनी है। हुसैन ने अपना रुख मोड़ लिया। अब पता है लैला ने क्या किया, चादर सर से उतारी, हाथों का प्याला बनाया, अकबर के जख्म के नीचे रखा। जब प्याला भर गया, अब लैला चाहती थी बालों को खिजाब करे। ज़ैनब चीखे, हुसैन देखो लैला क्या कर रही है, कयामत आ जाएगी। हुसैन ने कलाई पकड़ी, लैला ये क्या कर रही है। कहा मौला अकबर के खून से सर खिजाब करूंगी, कयामत के दिन अदले इलाही का पाया पकड़ूंगी और फिर पूछूंगी या अल्लाह इन जालिमों से पूछ, मैंने अकबर को नेज़ों के लिए तो नहीं पाला था, मेरा अकबर नेज़ों के लिए तो नहीं पाला था। जोर के ना तो सोनू और भी लाल नहीं बनी है चल ये आएगी शाम को।
उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब भाई मोमन है, सब भाइयों को पता है ज़ियारत भी हो गई और आपने अपने लिए भी दुआ मांग ली, मेरे लिए भी मांग ली। तो लिहाजा इस वजह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा। अगर लिंक ना लगाओ तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट लगने हैं, नाम को रिसर्च करिएगा, टॉप पर आपका भैया आ जाएगा, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा और सपोर्ट कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।